What you're about to watch in this 1 hour long video is going to completely transform the way you approach DILR section in the future. I'm not even kidding, because in this video, I will be selecting a mock randomly and I would be attempting that mock like a student would, like anybody would. And very frankly, DILR is not even my strength. My strength is VARC. If you've been seeing me for the last 1 or 2 years, you would know that. But this is important because this probably is going to be that milestone video in your YouTube watching career that is going to really accelerate your DILR prep. DILR is a make or break section, and I've been always saying this, that you should treat it like puzzles. These are advanced level of that, and merely by logic, what you'll witness in this video is that by logic, can you cross a 95 or maybe even a 99 percentile in DILR by logic, by being calm and by doing it. By the end of this video, first of all, you have to promise me that you'll be watching this video till the end, because there's so much learning from this that you'll be like, wow, can we solve DILR sets like this? You will let me know in the comments what you're feeling about this video. That is extremely important. Before I take you through that, I need your 30 seconds for something very important for your CAT prep. You could be somebody who's been studying really hard, already enrolled at a coaching institution, taking mocks, but yet you feel lost, yet you feel that, hey, I've not really started my prep in the way I should have started it. Now is the time when I've got serious about it, but I'm still feeling lost. I don't know whether I'm doing right, wrong, what more I can do so that I can surely make it happen this year. My dear friend, the difference between your dream percentile, dream B school, and where you are right now is not learning more, but it is learning the right things. It is mentorship guidance. If you have a brother, sister, friend who has cracked CAT and is invested in your prep, get them to do it. If not, I have created a CAT mentorship program for my almost last 9 years of experience in this, wherein in this mentorship program, you and I will meet in video calls, on video calls, face to face frequently. We will schedule them and I will hold you accountable for your prep. I will guide you what you need to prep, at what stage, at different stages. You'll be feeling different things in life. You'll be speaking to me about it. I'll be solving that. Moreover, you will get chat access to me. So whenever you're feeling frustrated, tired, scared about what will happen, you can send me a WhatsApp and I can respond back at the earliest. I will not be teaching you quant, DILR and VRC. You could be enrolled at any coaching institute. This is that additional layer of mentorship which ensures that just like a personal trainer in the gym, you get the best from your performance. If you don't know me yet, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I've been the MBA product head at Career Launcher. I'm the founder of Creatum, where I help MBA students get fulfilling careers without depending on placements. Let's get to that part of the video wherein I'll be solving the DILR section of a previous year CAT mock. Do not forget to subscribe to the video. Hi and welcome back. Now from this point onwards, this video is going to be uncut. Before I begin selecting which mock I will be taking and solving it, I would want to show what I can see in front of me, my environment, so that there is absolute transparency. For this, I will be lifting my camera, which is something I rarely do on my channel. And I'll be showing what I can see. So what you can see is my laptop, my keyboard, my iPad on which I'll be solving the mock, mouse, microphone, and I don't have anything else on the table which I should not be having. I don't have anything which I should not be having. That is something which is absolutely clear. So I'll just place my camera back where it should be, and what I'll do is I'll also put it on charging because it might run out of battery. Where it is, yes, so here it is. And okay, let me just check the framing once more. The framing seems to be okay, and we can begin. Perfect. Okay, now what I'll do is that I will go to my screen and I will select which previous year CAT paper I will be taking. So here I believe you can see my screen. I will be using randomize function on this sheet so that I can randomly choose. I've done this kind of a video, exactly the same kind of a video last year as well, जहाँ पे मैंने previous year CAT paper से randomly I had selected something. So here I have listed that what are the papers which I have already attempted. So for DILR, I have already attempted CAT 2022 ka slot 3. If you want to watch that video, you can find the link somewhere and you can watch that. But this does not mean that I have solved the CAT 2022 slot 3 of VARC, because on CL's website you can solve them as a standalone. So what I'll do is, obviously अगर इस बार भी CAT 2022 slot 3 हुआ अगर यहाँ पे, I will not be attempting that. Basically मैंने इसलिए सामने लिखा है यहाँ पे. So what I'll do is I will quickly select which mock test I will be appearing for. So I will be choosing from between CAT 2021 and CAT 2024. The reason is 2021, prior to CAT 2021, the format of CAT was not the same as what it is right now, and I have
excluded CAT 2025 only because I don't want somebody to then be smart and say that, oh, you know what, 2025 has just happened, so you would remember all of the questions and answers, which I don't. But I said, still, let me remove all of those things, all of those like speculations, and I'll just keep it between 2021 and 2024 is what I had said. So let me go here and do, say, rand between 2021 and 2024, and I get 2021. So I will be appearing for CAT 2021. Now, which slot in CAT 2021 will I be appearing for? I will just check that again. I will come back and I will do rand between 1 2 3 slots 1 2 3, and I get slot number 1. So what I will be doing is that I will be appearing for CAT 2021 slot 1 DILR paper for this attempt. Now for this, what I will do is I will be going to Career Launcher's website, and I hope you can see my screen now. You will be able to, and if you go to their mocks area, what you will be able to see is that all the previous year mock tests they have uploaded here as mock test, and I can appear for standalones. Like, say for example, for like 2022 I can appear for VRs and all of those things. So we had to appear for 2021 slot 1, which is over here. So this is the test which I will be appearing for. I will keep my keyboard aside because now iska koi kaam nahi hai, and I will bring my iPad in front of me because that is the device which I'll be using. I hope you can see my screen. I will still need to use this to navigate between screens. Yes, you can. So now I will be choosing this. Where is it gone? Actual CAT 2021 slot 1 LRDI. Now the new screen would not be visible to you. I will have to go back to my OBS to make you show the screen which is coming here. So browser and properties and CL Online. Yes, I believe you are able to see the screen wherein the mock scores, sorry, the mock will show. I will just expand this screen so that you can see it completely. I hope this is expanded at your end also. Yes, it is. Okay. And now I hope you can also see my iPad. Let me just try that out. I will scribble something on my iPad. I hope you can see that. Yes, you can see that. So I'll just erase this so that we are clear what we are doing. Let me go back to this, and here is the paper. Actual paper slot 2020, sorry, CAT 2021 slot 1, and let's begin the paper. It's exactly 2 a.m. in my watch. If you can see over here, I don't know if that you can see that or not, but that's okay. So I'm ready to begin. Let's go. And I hope you learn a ton from how am I attempting the paper. That is the entire objective of doing this, by the way. Let me go back. Sure. Oops, what happened? Yeah, let me go back. And here we go. Let me begin the paper. Okay. Set number 1. This is a LR set. I'm usually better in LR as compared to DI. A journal plans to publish 18 research papers written by 8 authors. Okay, in 4 issues. 18 papers, 8 authors, 4 issues. Jan, April, July, October. So these are the 4 issues. Each of the research papers were written exactly by one of the 8 authors. 5 papers were scheduled in first of the 2 issues. तो फैक्ट्स दिए, ठीक है. क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन से बहुत बार समझ आता है कि व्हाट इज द सेट ऑल अबाउट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ पेपर्स रिटन बाय बी. तो एब्सोल्यूट है, मतलब टेबल फॉर्म करके मुझे एब्सोल्यूट आंसर्स मिल जाएंगे. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स, अगेन एब्सोल्यूट आंसर मिल जाएगा. ये वो वाला किस्म का सेट नहीं है जहाँ पे कि एब्सोल्यूट नहीं होता, वो वाला एक है, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज अ गुड सेट, ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट सेट? अच्छा, इसमें 5, ओके, ये 6 क्वेश्चंस का सेट है, विच इज वेरी गुड. आई थिंक आई फील गुड अबाउट दिस बिकॉज वन, दिस इज LR, seems to be my comfort area. There is not a lot of information on this set. I hope you can see my screen. Yes, you can. And it has 6 questions. So if I crack this, if I complete the table, it's an absolute like table and I can get 6 questions, right? I am likely to attempt this set. It is seem to be, you know, it seems to be something in my area of strength. Now the next one is a DI set. Quite clearly there is one table, has 4 questions. Okay. Horizontal bars above the diagram represent 2022 aggregate sales in rupee million. तो bars represent करते 2020 के sales of a company for different subcategories of its product. Top 4 product categories: bookcases, chairs, furnishing table. Top 4 मतलब bookcases, chairs, furnishing tables. Okay, belong to furniture product category. So they are a category.
बॉटम 4 सब कैटेगरीज, बॉटम 4 क्या है? एक्सेसरीज, कॉपियर्स, मशीन, फोन. एक्सेसरीज, कॉपी, मशीन 4 बिलोंग टू द टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैटेगरी, while all other product मतलब बीच के सारे belong to the office supply product category. For each of the product subcategories there is a vertical line, ये बीच वाली शायद, corresponding to the sales of 19. ओके 20 की सेल्स है और नहीं, बेसिकली इट इज अ टेबल जिसमें 20 की सेल्स है. क्वेश्चन क्या है? टोटल सेल्स इन मिलियंस इन 2019 फ्रॉम प्रोडक्ट्स इन ऑफिस सप्लाईज. तो भाई एडिशन है, ठीक है, बहुत सिंपल है. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एटलीस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी, वेरी सिंपल, डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल यू जस्ट हैव टू सी इट. हाउ मेनी सब कैटेगरीज मोर, हाँ ये इजी है यार, दिस इज इजी, दिस इज डायरेक्टली ऑब्जर्विंग. ठीक है, दिस इज अ सेट आई एम डेफिनेटली अटेम्प्टिंग, ऑल्दो DI और समथिंग मतलब मैथमेटिकल इज समथिंग विच आई शाई फ्रॉम. दिस इज LR. I hope you can still see my screen. That is extremely important. Yeah, you can. Ganga, Kaveri, Narmada are 3 women who buy 4 raw materials. Mango, apple, banana, milk and sell 5 finished products. Okay. Table 1 gives information about raw materials required to produce. 1 unit of finished product requires 1 unit of each raw material. ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल है. 1 यूनिट ऑफ मैंगो बनाना, तो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट दे दिया है. ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स. मतलब मैंगो स्मूदी का प्रॉफिट होगा 2 टाइम्स 2, 4. आगे पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल स्मूदीज मेड विद 2 रॉ मटेरियल्स, एप्पल मिल्क विल बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 4. एग्जैक्टली वही. तो लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे फॉर अ लॉस ऑफ 1. अच्छा, अब यार जहाँ पे ना मैथ इंक्लूड होना शुरू हो जाए वो थोड़ा मेरा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर ईच वुमेन 4 बिजनेस आवर्स. ठीक है, सेल्स दी हुई है एवरी बिजनेस आवर, तो लास्ट. ठीक है, कुछ होगा इसमें, टेबल होगी, बनेगी, कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे. क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन है बेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय नंबर ऑफ इट्स. सी अब देखो, मुझे प्रॉब्लम ये है, मैंने फर्स्ट सेट में दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, जहां पे आइदर 0 1 2 है, मतलब मुझे पता है इसमें जितना भी दिमाग लगा लो लास्ट तक ये टेबल एब्सोल्यूट नहीं होने वाली, सब कुछ डेटा नहीं भरेगा, तो मैं लास्ट में 0 1 2 3 में आइदर और करना पड़ेगा. ये फिर भी एब्सोल्यूट है. सी अगेन आइदर 17 18 19. सो ऐसी टेबल्स मुझे पर्सनली लास्ट तक दे गिव मी एंग्जाइटी. ये यार पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं ऐसी चीजें में छूता नहीं हूँ यूजुअली. चलो वो 4 क्वेश्चंस का ही सेट है, मोस्ट लाइकली मैं उस सेट पे कभी नहीं आने वाला. दैट इज नॉट अ सेट विच आई एम टेकिंग लॉट ऑफ एक्सटेंशन. ABCDE, इसमें ऑप्शंस कैसे हैं? पहली बात, हु आर गौतम सेक्वेंट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, और ये भी 6 क्वेश्चंस का सेट है. ये क्वेश्चंस का सेट है, ये करा जा सकता है, बट क्या है इसमें? ऑल रिलेशनशिप्स, एनी पेयर ऑफ देम कुड बी आइदर स्ट्रेंजर्स, तो ABCDFGH है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, ऑल रिलेशन म्यूचुअल. फॉर एग्जाम्पल इफ अमुधा इज फ्रेंड ऑफ भरतन, A इज फ्रेंड ऑफ B, देन B इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ A, ऑब्वियसली. ठीक है. सिमिलरली A इज स्ट्रेंजर टू B, ठीक है. पार्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस गिवन, तो मतलब A के कितने अक्वेंटेंसेस है वो मुझे मैच कराना पड़ेगा किसी और से. कुछ टेबल, 2 टेबल्स बनेंगी जिसमें, या क्रॉस टेबल भी बन सकती है. फैक्ट्स दिए, ठीक है. दिस इज, इसका मुझे डायरेक्टली टेबल समझ नहीं आ रहा, सो दिस कुड बी माई थर्ड सेट इफ आई रीच देयर. माई फर्स्ट वन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस DI सेट. वेयर इज इट? दिस इज द वन. ओके, तो दोबारा आते हैं, इसको एक बार से पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? टोटल सेल्स इन मिलियन इन 2019, मतलब ये वाले, मतलब द डैशेस इन प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी. ऑफिस सप्लाईज कौन सी है? टॉप 4 आर कॉल्ड फर्नीचर, बॉटम 4 आर कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ऑल अदर्स आर ऑफिस सप्लाई. मतलब कि टॉप 4 छोड़ के ब्लाइंडर से लेके सप्लाईज तक मुझे ऐड करना है क्या भाई? ठीक है, कैलकुलेटर निकालो. एंड अप्रोक्सीमेट बोला है, अब कैलकुलेटर है, सामने सामने से करते हैं. ये कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू सम 3.6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0.45, मानता हूँ उसको मैं 0.45. आगे चलो, 8 हो गया. अप्लायंसेज, अप्लायंसेज इज रफली 1.9, 1.9. ठीक है. एनवलप्स इज 0.4, अगर ये 0.45 था तो 0.4 होगा, ये 0.4. ओके. फास्टनर्स है 0.1 मान लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट है. देखो कितनी क्लोज वैल्यूज हैं, ऑप्शंस भी मैंने चेक नहीं करे. क्लोज वैल्यूज ये फर्स्ट 2 हैं, आई होप उसमें ना हो. लेबल्स है 0.25, लेबल्स है 0.25 प्लस
पेपर है एग्जैक्टली 1.5, 1.5 प्लस 4.3, ओके 4.3 प्लस क्या की फक आई फॉरगॉट, मैंने क्या ऐड करा था, स्टोरेज 4.3, हाँ ठीक है। सप्लाईज, दिस इज द लास्ट लास्ट फोर छोड़ने हैं मुझे, 1.2, ओके सो 12.5 हो चुका है तो 2 नहीं है, 1.2 आई हैव टू ऐड, द आंसर इज 13.5 बट आई स्टिल ऐड इट 1.2, द आंसर इज 13.5, ठीक है 13.5। अब कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो सकती बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली करा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, आई एम वेरी हैप्पी। 32 मिनट्स आर लेफ्ट, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। अभी तक मैंने पेंसिल और पैड यूज नहीं करा है बाय द वे, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स इन फर्नीचर कैटेगरी, फर्नीचर कैटेगरी आई थिंक फर्स्ट वाली है, लेट मी जस्ट कंफर्म, टॉप 4 कैटेगरीज belong to furniture, ठीक है। टॉप फूड, बुक केसेस, चेयर, फर्निशिंग टेबल्स, ओके। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2019 onwards, ठीक है। एक एक का कैलकुलेट कर लेते हैं, चार का ही तो है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस मगर देखो एक सेकेंड, वेट अ मिनट, 1 8, ओके आई कैन सी अ थिंग कि इफ यू सी दिस, ये 25 और 20 नहीं हो सकता है। आई टेल यू वाई, ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे है खेल थोड़ा, बिकॉज अगर तुम देखो बुक केसेस, फर्निशिंग्स और टेबल्स में 19 से 20 की ग्रोथ किसी भी हालत में 25-20% तो है ही नहीं। तुम अगर ये देखो, मान लो ये भी जो इन तीन में से हाईएस्ट है, ये इंक्रीज्ड पार्ट, इस पार्ट का 20% या 25% तो है ही नहीं। तो जब आउट ऑफ 4 तीन ही 20 या 25% नहीं है तो फिर तीनों का एवरेज कभी 25 और 20 हो नहीं सकता। आंसर इज बिटवीन 1 and 8। अब इसमें भी क्या है, मैं मान सकता हूं एक बारी को कि फर्निशिंग्स एंड टेबल्स 1% हो सकता है, मगर डेफिनेटली बुक केसेस और चेयर्स को इंक्लूड करते ही ये 1% से इंक्रीज कर जाएगा। ये 1% नहीं हो सकता, बिकॉज इफ यू सी दिस 6 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 तो ऐसे ही हो गया, इसका इंक्रीज है। दिस द आंसर इज 8, and I think this question is a classical example of how you should be smart enough, because अगर ये सही होगा, I will check this answer, I will repeat this, that this is again observation, pure observation, learn from this. I'm pretty sure this is going to be right. How many subcategories had sales of 4 million or more in 2019 and registered an increase in excess of 25%? ठीक है, तो 4 million कहाँ है, 4 million ये है, तो डैशेस 4 million से ज्यादा होने चाहिए, बहुत कम के हैं, ठीक है। एंड सेल्स इन एक्सेस ऑफ 25%, ओके 4 मिलियन सबसे पहले ये है, इसका 25% से कम है नहीं, एक भी नहीं है अभी तक। 4 मिलियन, ये ऑरेंज लाइन है, ये जो मतलब ऑन लिखा है ना, जहाँ पे इसके पहले जो ये लाइन है, ये है बेसिकली ये है एक, इसमें भी 25% नहीं है, ये है एक, इसमें भी 25% नहीं है ग्रोथ, ये है इसमें तो देयर इज अ डी ग्रोथ, यही है भाई। एक है जिसमें 25% से ज्यादा है, 25% है कि नहीं है, देखो 5.75 है, और इसमें 5.75 टू 7.75, तो 2/5.75, हाँ it is more than, so the answer should be 1 again. See, the good thing which I'm very happy, I very rarely as an educator get to share some sets जो कि thankfully मिल गया, जहाँ पे मुझे पेन पैड यूज नहीं करना पड़ रहा है। That is a very good example. I think this video is going to be a very good one as that. Anyways, I should not lose my time on this. Now the I hope you can see my screen by the way. Yes, you can. The improvement index for a category is the maximum percentage increase in sales from 2019 to 20 among any of its subcategories. तो किसी एक में भी जिसमें हाईएस्ट है वो उस कैटेगरी का इंप्रूवमेंट इंडेक्स है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इंप्रूवमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो लेफ्ट मोस्ट है वो सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटी कौन सी है, ओके तो फर्नीचर कैटेगरी की ग्रोथ सबसे सबसे कम यही लग रही है मुझे, बिकॉज औरों में नहीं, मगर इसमें देयर इज ऑल्सो अ डी ग्रोथ, नहीं सॉरी एवरेज नहीं निकालना ना, सॉरी फर्नीचर में जो हाईएस्ट है, बाकी में जो हाईएस्ट है, हर कैटेगरी की हाईएस्ट में से लोएस्ट कौन सी है बेसिकली, ओके तो हाईएस्ट इसकी चेयर्स है। सेकंड कैटेगरी की हाईएस्ट जो ग्रोथ है वो है ब्लाइंडर्स या फिर मतलब कि बाइंडर्स, और इसकी थर्ड की है फोन्स। तो इसमें से लोएस्ट ग्रोथ किसकी है, या फिर लोएस्ट छोड़ो ना, हाईएस्ट में से हाईएस्ट देख लो, हाईएस्ट में से हाईएस्ट देख लो। हाईएस्ट में से हाईएस्ट अगर किसी की है, मैं बताता हूं, बिटवीन चेयर्स, बाइंडर्स एंड फोन्स हैज टू बी दिस वन, बी, बिकॉज यू वुड थिंक कि फोन्स की है, मगर फोन्स में दिस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हैज हैपेंड ओवर अ लार्ज बेस, वेयर इज द सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हैज हैपेंड ओवर अ स्मॉलर बेस। तो बाइंडर्स बिलोंग्स टू
ऑफिस सप्लाई, सो ऑफिस सप्लाई इज द हाईएस्ट, तो ऑफिस सप्लाई की ऑप्शन में हाईएस्ट है, की ऑप्शन में हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, टेक्नोलॉजी या फिर फर्नीचर। अब सेकंड हाईएस्ट तुम देख लो, इस बेस पे अभी मैं चेयर्स और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, हैज टू बी फोन्स, बिकॉज स्मॉलर बेस पे ज्यादा ग्रो करा है, चेयर ज्यादा बेस पे कम ग्रो करा है। लास्ट वॉज टेक्नोलॉजी आई बिलीव, last four categories are technology, yes, so the answer is office supplies, technology, furniture, highest, lowest, lowest. Answer is 1. I think my set number 1 is done and I'm very confident about this. I have 27 minutes left. I can do whatever I want. I can easily do 2 sets, I think. Let me think that, but I am definitely going for this question, this set which has 6 क्वेश्चंस टू इट। ये है मेरा 4 हो चुके हैं, ठीक है। अब जी इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए मुझे टेबल बनानी होगी। सो विदाउट फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेयर विल आई फिट मोर इन द कैमरा, दिस साइड, ओके दिस साइड। विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट मी जस्ट go back to my iPad screen and start doing this. Now wait a minute. Okay, a journal plans to publish 18 papers written by authors. I hope you can see my screen because now I have to smartly switch. Okay, 18 authors between A B C D E F G H. मैं इसको लिख लेता हूँ, A B C, I hope you can see my screen, A B C D E F G H. iPad दिख रहा होना चाहिए अभी, perfect, it is working fine. Let me go back to this. 4 issues journal in January, April, July, October, ठीक है। Coming back to this, each of the research papers was written by exactly one of the 8 authors, ठीक है। Obviously किसी ने तो लिखा ही होगा। 5 papers were scheduled in each of the first 2 issues while 4 were scheduled in each of the last 2 issues. तो 5 + 5 10, 4 + 4 8, 18, ठीक है। मतलब पहले 2 में 5 पेपर्स थे एंड सेकेंड में 4 है, सम इज 18, तो ये एब्सोल्यूट है, अभी तक मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इस पे। आई होप स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इसमें क्या है, एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट 1 पेपर, एट मोस्ट 3 पेपर्स। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स रिटन बाय A D G H was double the total of papers written by other authors. अब ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं है टू रियली टॉक अबाउट, सो आई विल गो बैक टू दिस एंड आई विल सी। 4 authors were from India, 2 each were from Japan, China. Okay, important information. India 4 authors, Japan, China 2 authors. तो ये भी 8 authors हो गए, ये भी एब्सोल्यूट है, तो मुझे इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। Now each author belong to exactly one of the 3 areas: manufacturing, automation, logistics. 4 authors were from logistics, 2 from automation. तो 2 है, तो 4 वहाँ है, 2 वहाँ है, ठीक है। तो एक सेकेंड, कौन सा कहाँ के था? 4 authors were from logistics. I have to be very careful. I have to switch screen. मैं एक हाथ से भी स्क्रीन को स्विच कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मैं दिखा सकूँ। तो लॉजिस्टिक्स के 4 हैं, ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग के 2 हैं, तो ये भी 8 हो गए। तो पेपर अच्छा, लोग ऑथर, सॉरी एज पर जनरल पॉलिसी नन ऑफ द ऑथर्स कुड हैव मोर देन 1 पेपर इन एनी जर्नल ऑफ द इशू। None of the authors could have more than, ठीक है, that's not important right now. Now let's see. F is an Indian author. I hope you can see my mock right now. Yes, you can. F is an Indian author. Okay, let's start making the table. Table मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट में बनाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में बनाता हूँ, तो अब मैं लिख लेता हूँ जल्दी A B C D E F G H, ठीक है जी। अब टेबल फिल करना शुरू करते हैं। अब ये कह रहे हैं F इज एन इंडियन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया। इंडियन ऑथर लॉजिस्टिक्स एरिया रोट ओनली 1 पेपर। अभी यहां तक को यूज करते हैं। F इज इंडिया, तो ये कंट्री बन गई, और एरिया क्या लिखा था? लॉजिस्टिक्स एरिया। लॉजिस्टिक्स, तो मैं इसको एरिया बना देता हूं। एंड हैड ओनली 1 पेपर, तो मैं यहाँ पे आके नंबर ऑफ इश्यूज को लिख के 1 कर देता हूँ। इट वॉज स्केड्यूल्ड इन अक्टूबर इशू, ठीक है। तो इशू को मैं अक्टूबर कर देता हूँ। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 23 मिनट्स। ओके भाई, ये टैमरिंग, दिस शुड हैपन। ओके, ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल इन अक्टूबर, ठीक है। ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया एंड डिड नॉट हैव, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, अक्टूबर नहीं है बिकॉज बाकियों का मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। वापस आ जाते हैं। none of the Indian authors were from manufacturing, none of the Japanese or Chinese were from automation, which is very
counterintuitive, but let us write this down. So India not manufacturing and Japan and China not automation, not automation. Is that correct? Work from order, ठीक है. A and H were from different countries but had their paper schedule and exactly same issues. तो भाई A and H के इश्यूज सेम है, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल देता हूँ ताकि बात मतलब ये भी अक्टूबर नहीं है, तो ये मैंने कर दिया है. बाकी देयर पेपर्स इन एग्जैक्टली सेम इश्यूज, ठीक है. सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर्स वर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. सी एंड ई आर चाइनीज ऑथर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, ठीक है. एट द सेम नंबर ऑफ पेपर्स स्केड्यूल्ड, तो नंबर्स ऑफ पेपर्स इसके सी और ई के भी सेम होने चाहिए, ये मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है. फर्दर ई हैड कंसेक्यूटिव पेपर्स, ई हैड पेपर शेड्यूलिंग कंसेक्यूटिव इश्यूज ऑफ जर्नल बट सी डिड नॉट, ठीक है. अभी पता नहीं चल रहा है इसका मुझे. बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया हैड पेपर शेड्यूल्ड इन अप्रैल इशू. बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स हैड पेपर इन अप्रैल इशू. अब अप्रैल के अलावा और कौन से इश्यूज हैं पता नहीं अभी. बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, लिख लेते हैं. बी एंड जी बिलोंग टू सेम कंट्री, इक्वल टू डाल दिया है. नन ऑफ द पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ द जर्नल, ठीक है. बी अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया. बी जापान मैन्युफैक्चरिंग आगे did not have paper scheduled in जुलाई, तो इसमें जुलाई नहीं है, जुलाई नहीं है. मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे लाइंस बनानी पड़ेंगी वरना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अब कौन सा किस लाइन में लिख दिया है मैंने. थोड़ा समय लेके लाइन बना देते हैं, 1 मिनट रुको. आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, मतलब यू कैन सी माई आईपैड. यस, कैन यू लेट मी चेक दैट ऑल्सो. यस यू कैन, थैंक गॉड. ओके, परफेक्टो, ठीक है जी. हम कहाँ पे थे? डी जैप डिड नॉट हैव पेपर शेड्यूल्ड इन जुलाई. लास्ट इज सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज. ओके ओके ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, इसमें भरा क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बी सी ई जी? अरे तो एब्सोल्यूट मांग रहा है, एब्सोल्यूट मांग रहा है. ईसीजी के इश्यूज. अब एक चीज है जो मुझे समझनी है, जो ये इंफॉर्मेशन दी है कि यह अक्टूबर में नहीं है, जुलाई में नहीं है, मतलब जो इंफॉर्मेशन दी है इट वाज दैट डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन अक्टूबर. अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इज इट एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन या फिर दिस इज वन पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. मतलब एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन मतलब कि इट इज नॉट शेड्यूल्ड इन अक्टूबर, दैट मीन्स अक्टूबर के अलावा बाकी मतलब सब में है. या फिर पार्शियल इंफॉर्मेशन मतलब कि अक्टूबर में तो नहीं है, हो सकता है किसी और में भी ना हो. क्योंकि अब अगर भैया ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है तो मेरे पास फिर बहुत कुछ करने को है नहीं, फिर मेरे पास बहुत कुछ इसमें फिल करने को है नहीं. पार्शियल होगी नहीं. लेट मी अज्यूम दिस इज नॉट पार्शियल इंफॉर्मेशन. आई होप यू कैन सी माई आईपैड. यू कैन. इफ दिस इज नॉट अक्टूबर देन व्हाट वर द अदर? अक्टूबर के अलावा जनवरी, अप्रैल, जुलाई. लेट मी डू समथिंग. ओके, लेट मी डू दिस. दैट जनवरी, अप्रैल, जुलाई, लेट मी एंटर दिस. भर देता हूं और ये इक्वल मैंने कहीं लगाया है, तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई. बिकॉज वरना फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है. वरना मुझे लग रहा है मुझे ओवर थिंक करना चाहिए नहीं एट दिस पॉइंट. मुझे यही अज्यूम करना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन है. इन दैट केस ऑल्सो देन दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन. आई शुड से जनवरी, अप्रैल एंड ऑगस्ट, सॉरी अक्टूबर, which by the way means this has 3 issues, this has 3 issues, this has 3 issues. fair enough. आगे बढ़ते हैं. और मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? और मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? ओके देन अच्छा, एक और चीज करता हूं मैं, एक और चीज करता हूं. लेट मी गेट बैक एंड लेट मी सी कितने कितने फिल कर दिए. तो इंडिया के कितना है? इंडिया का 1 हो गया है, तो इंडिया के 3 बचे. जापान का 1 हो गया, चाइना के 2 हो गए. जापान का 1 बचा, चाइना के खत्म. चाइना के अब कोई नहीं होगा, तो वेरी गुड. इससे मुझे ये हुआ आइडिया कि बाकी में अब चाइना नहीं आएगा. ओके, और ऐसे ही एरियाज का कर लेते हैं. लॉजिस्टिक्स के 2 हो गए हैं. आई होप यू कैन सी माई आईपैड वेयर आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस एक्शन. लॉजिस्टिक्स के 2 हो गए हैं, तो लॉजिस्टिक्स के 2 बचे. ऑटोमेशन 1, मैन्युफैक्चरिंग 1. ऑटोमेशन 1 बचा, मैन्युफैक्चरिंग 1 बचा. देखो आई एम गोइंग बाय लॉजिक. अगर ये सेट सॉल्व होगा ऐसे ही सॉल्व होगा. अब आ जाओ इसके साथ भी. लेट्स डू इट बाय द मंथ ऑल्सो.
जनवरी 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 3 जनवरीज हो गए हैं, तो जनवरी के 2 बचे हैं। अप्रैल कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 अप्रैल हो गए, तो एक बचा है। जुलाई में कितने, 1 2, जुलाई के सिर्फ 2 हुए हैं, तो 2 बचे हैं। अक्टूबर के 1 2, अक्टूबर के भी 2 बचे हैं। बेसिक कहानी अभी ये है, बेसिक कहानी है। अच्छा एक चीज मुझे याद आई, अप्रैल 1 है मालूम है, किसी का एक का लिखा था कंजेक्यूटिव, कंजेक्यूटिव कहाँ लिखा था, ये फर्दर ई हैड पेपर्स, सो सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, चाइनीज ऑथर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, दोनों के एरियाज नहीं पता है मुझे अभी फिलहाल, बट ठीक है। फर्दर ई हैड पेपर्स इन कंजेक्यूटिव इश्यूज ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। एंड वन थिंग आई कैन टेल यू, इनके 3 तो नहीं है क्लियरली, इनके 2 ही हैं, बिकॉज कंजेक्यूटिव इश्यूज की बात है अगर, विच मीन्स ई के कंजेक्यूटिव इश्यूज में है। अब देखो समझो, कंजेक्यूटिव इशू मतलब अगर ई को मैं जुलाई अक्टूबर दे दूं तो सी के फिर जापान अप्रैल होने होंगे, क्योंकि एक ही बचा है। अब यहाँ पे अप्रैल इज द कंस्ट्रेंट, अब मैं मजाक नहीं कर सकता यहाँ पे, मैं 3 नहीं हो सकते, वरना 2 में अप्रैल हो सकता है आना हो। हाँ 2 में अप्रैल आएगा, तो ऐसा नहीं, तो ईच के 2 हैं, ये समझो। मतलब ई विच हैज कंजेक्यूटिव हैज टू हैपन अप्रैल एंड जुलाई, एंड तभी सी के जनवरी अक्टूबर होंगे, वरना सी विल ऑल्सो बी कंजेक्यूटिव। I hope you can see my iPad what I'm doing. Yes, you can. I don't have the time to explain this more than this, but I hope you have understood this. So I am writing E as E था ना यार, एक मिनट, E के consecutive है ना, हिंद भी आने लग गई, तो E had papers in consecutive areas, तो C did not. E के consecutive areas हैं, मतलब E is April July, E is April July for sure, and then this is January October. C is Jan October. So this is 2, which is also correct by the way, because these two are supposed to be equal. जी का अभी हमें कुछ नहीं पता क्या, जी का कुछ नहीं पता। ओके 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 ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, ए फ्रॉम ऑटोमेशन शेड्यूल, नन ऑफ द इंडियन ऑथर्स वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया। हाँ एक सेकेंड देखो, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में से नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग के कितने बचे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का 1 बचा है, और जापान का 1 बचा है, और 3 बचे, 1 2 3 नहीं 4 बचे हैं ना। हाँ तो इंडिया के 3 है, तो भाई देखो क्लियर है यहाँ पे मुझे, नहीं अभी क्लियर नहीं है, अभी कहाँ से क्लियर हो गया, होल्ड ऑन। सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर्स वर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, different areas, C and E are from different areas. अच्छा C and H belong to different areas, C and E are a different area, C and H are different areas, C and E are different areas, and C and H are different areas। और areas कितने बचे हैं हमारे पास, areas बचे हैं 4, ओके। एंड चाइना में ऑटोमेशन नहीं आ सकता, तो चाइना में लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग ही आएगा, और ये दोनों तो मतलब ई एन एच सेम है भाई, ई एन एच सेम है, फिर ई एन एच सेम है, और इसका मतलब है ई एन एच अगर सेम है तो वो लॉजिस्टिक्स ही हो सकता है, लॉजिस्टिक्स ही हो सकता है, क्योंकि इसी के 2 बचे हैं, इसी के 2 बचे हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स ई एन एच ना, ई एन एच की बात हो रही है ना, ई यहाँ से और एच यहाँ से 9 से, तो हाँ ठीक है, ई एन एच बोथ आर लॉजिस्टिक्स। मेरा लॉजिस्टिक्स खत्म हो गया, लॉजिस्टिक्स के 4 खत्म हो गए। अब बचा ये, अब या तो ऑटोमेशन है या मैन, हाँ तो ये ऑटोमेशन हो नहीं सकता, ये मैन्युफैक्चरिंग होगा बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग होगा। ओके ये इशू यहाँ पे हो चुका है 1, ये मैंने फिल क्यों नहीं करा था, आई डोंट नो, विच इज नाउ वेरी क्लियर टू मी, बिकॉज नाउ इफ आई एम सॉल्विंग फॉर द कंट्रीज अब मेरे पास क्या बची हैं, इज दिस डन, no, so I have done 2 2 manufacturing are done. Now only what is left, automation is left, only automation is left, because automation is, yes, only automation is left, this has to be automation. I hope you can see my screen, this is some real action happening over here. Now it is very clear, I can fill the countries, because countries are left how many, how much time is left, how much 30 minutes are left, I have not solved. I have not solved, okay, it's okay, 3 India 1 Japan,
वन जापान इज लेफ्ट, और ये दो अगर इक्वल है दिस हैज टू बी इंडिया इंडिया, वरना दो कहां से लाओगे, जापान तो दो है ही नहीं, इंडिया इंडिया, और ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वेरी गुड। और जापान ऑटोमेशन नहीं हो सकता, तो इंडिया ही ऑटोमेशन होगा, और ये मेरे भाई जापान होगा, खत्म बात, खत्म बात। अब इसके पेपर मुझे याद नहीं आ रहे कितने थे, एक सेकेंड समेशन करके चेक कर लेते हैं। 4, 4 + 2 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12 + 3 15, दिस इज 3 18, 18 हो गया, 18 हो गया। अब ये कौन से पेपर्स हैं यार, ये अब देखना पड़ेगा। शिट, जी का कुछ लिखा है क्या? हाँ, बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, नन ऑफ देयर पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू। बी एंड जी के 3 हैं, बी के, हाँ बी का एक नहीं है, तो बाकी अप्रैल को छोड़ के जो 3 है हो गया काम खत्म, यस। जुलाई, जुलाई, अक्टूबर, दिस इज द कंप्लीट टेबल। आई होप यू कैन सी इट, आई होप यू कैन सी इट। नाउ आई कैन आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑफ these. What is the first question? 12 minutes on the clock, let's go. What is the correct number of sequence of paper written by B, C, E, G? Okay, here we go. B is equal to, my dear friend, 1, C is equal to, my dear friend, 2, E is equal to, my dear friend, 2, G is equal to, my dear friend, 3. The answer is 1 2 2 3. 1 2 2 3. Do we have 1 2 2 3? The first option, that has to be the answer. I'll not overthink this anymore. That's the second. Second, how many papers were written by Indian authors? Very simple now, because the table is complete. Indian authors is 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8. 8 is the answer. I'll go back to this. I will write 8. I will not overthink this. I'll be careful, but I'll not overthink this. Now let's come to this. Interesting. I hope you can see the mock screen. Yes, you can. Yes, yes, you can see it. Now, now there is no way that I can't solve this in the. I can't solve this entire set. Anyways, every issue, which of this following statement must be true? Statement: every issue had at least one paper by authors from each country. मतलब हर कंट्री का हर इशू में एटलीस्ट एक पेपर है। ओके, देन लेट मी गो बैक। जनवरी में ईच कंट्री, जनवरी में इंडिया का है, जनवरी में चाइना का है, जनवरी में जापान का है, जनवरी हो गया। अप्रैल में इंडिया है, अप्रैल में जापान है, अप्रैल में चाइना है, ये भी हो गया। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। जुलाई में इंडिया है, जुलाई में चाइना है, जुलाई में जापान है, ये भी हो गया। अक्टूबर, अक्टूबर में चाइना है, अक्टूबर में जापान है, अक्टूबर में इंडिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट बी, एवरी इशू हैड एट मोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया। हर इशू में जनवरी में हर एरिया के, एरिया क्या क्या है अपने पास, एरिया है लॉज, ये वो, कि एटलीस्ट के एटमोस्ट 2 पेपर्स हैं, 2 पेपर से ज्यादा नहीं है, 2 पेपर से ज्यादा नहीं है। ओके, तो 2 पेपर से ज्यादा नहीं है किसी एरिया के, एरिया के 2 पेपर से ज्यादा। यार एक मिनट, एरिया के, इफ आई एम नॉट टेकिंग इट राइट, 2 से ज्यादा नहीं है। एवरी इशू हैड एटमोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की ही कंडीशन मुझे चेक करनी होगी, बिकॉज 2 से ज्यादा इसी के हो सकते हैं। एवरी इशू हैड एटमोस्ट 2 पेपर्स बाय ऑथर्स, तो मुझे बस ये चेक करना है किसी इशू में लॉजिस्टिक्स के 2 से ज्यादा पेपर तो नहीं है, काम खत्म। अगर वो नहीं है तो बाकियों के तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज इसके 2 ही है। तो आ जाओ लॉजिस्टिक्स के चेक कर लो। जनवरी में लॉजिस्टिक्स के कितने हैं? लॉजिस्टिक्स जनवरी में लॉजिस्टिक्स का 1 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अप्रैल में लॉजिस्टिक्स का 1 है, अप्रैल में लॉजिस्टिक्स का 2 है, अप्रैल में लॉजिस्टिक्स का 3 है। द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, ऑप्शन 3 इज द आंसर। आई हैव 9 minutes ऑन द क्लॉक, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू दिस। आई हैव आंसर्ड 4 + 3 7. I have almost solved 2 sets by those like standards of 4 questions each wala. Ab which of the following statement is false? Every month मतलब every month had at least 1 paper from automation area. Let's check this. Every month, जनवरी का ऑटोमेशन ये रहा, अप्रैल का ऑटोमेशन ढूंढ लो, अप्रैल का ऑटोमेशन, हाँ अप्रैल का भी तो ये, अप्रैल का ऑटोमेशन ये रहा, जुलाई का ऑटोमेशन ये रहा, अक्टूबर का ऑटोमेशन ये रहा, तो ऑटोमेशन ट्रू है। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? एवरी मंथ, इशू इज मंथ, हैड एग्जैक्टली 1 पेपर बाय अ चाइनीज ऑथर। आ जाओ, जापान का चाइना ऑथर कहाँ है? जापान का चाइना ऑथर एक ये रहा, अप्रैल का चाइना ऑथर कहाँ है? अप्रैल का चाइना ऑथर ये रहा, जुलाई का चाइना ऑथर ये रहा,
और अक्टूबर का चाइना ऑथर ये रहा, ठीक है। स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। अब देखते हैं एवरी इशू विच इज मंथ, एवरी मंथ हैड एग्जैक्टली 2 पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स के 2 हैं हर महीने में। अभी हमने करा तो था किसी महीने में 2 से ज्यादा थे। हाँ, किसी महीने में 2 से ज्यादा थे, अप्रैल में 2 से ज्यादा थे ना। अप्रैल में लॉजिस्टिक्स 1, अप्रैल में लॉजिस्टिक्स 2, अप्रैल में लॉजिस्टिक्स 3। क्या था अभी लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, एवरी इशू हैड एग्जैक्टली 2 पेपर्स बाय ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स। एग्जैक्टली 2 तो नहीं है, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, बिकॉज April issue had 3 papers from logistics. This is the answer. That is that. 2 questions are left. Let's see how fair, how fast we can go. Okay. Which of the following statements is false? Which of the following statements is? I hope you can see my mock test. That is extremely important. Which of the following statements is false? Okay. There were exactly 2 papers by author from manufacture. यार बहुत लंबा हो रहा है. This is getting to my head, but that's okay. Which so okay. The first statement is there were exactly 2 papers of manufacturing in July. Exactly 2 papers. Manufacturing July यहाँ नहीं है. Manufacturing, this is false. Which of the following statement is false? There were exactly 2 papers by authors from manufacturing in July. July का manufacturing तो एक भी नहीं है. That is the answer. I think the first statement in itself is false. Let me check the next one, by the way, just for my knowledge. Because अब वही होता है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो लगता है यार एक और चेक कर लो. There are exactly 2 papers by authors from manufacturing in Jan issue. Okay, let's just like check this. Jan का, because अभी हमारे पास है टाइम. Jan का मैन्युफैक्चरिंग 1 ये रहा, Jan का मैन्युफैक्चरिंग 2 ये रहा, Jan में और कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. So statement 2 is true. एक और चेक कर रहा हूँ मैं. There was exactly 1 paper by an author. This is when you start to self doubt, by the way. This is exactly that example, but ठीक है, it's okay. I would rather solve them properly. There was exactly 1 paper by an author from logistics in October. October में logistics का 1 होना चाहिए. लॉजिस्टिक्स का यहाँ कुछ नहीं है, लॉजिस्टिक्स का यहाँ कुछ, लॉजिस्टिक्स का 1 यहाँ है, लॉजिस्टिक्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. आई थिंक इट इज करेक्ट. आई डोंट नीड टू चेक ऑल दी ऑप्शंस. इतना सेल्फ डाउट करना ठीक नहीं है. 1 is correct. Let's move it. I'm almost closing, like solving this. I'll still have 5 minutes. Very good. Which of the following is the correct sequence of number of papers by author from automation, manufacturing, logistics? So let me write this down. Automation, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स. कितने टोटल सम है? आई होप यू कैन सी माई iPad. येस यू कैन. अरे बट वो मेरे फेस के नीचे छिप जाएगा. आई नीड टू राइट इट डाउन समवेयर एल्स, नॉट देयर. तो लेट मी, यार अब तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए करना पड़ेगा ना, वरना तो फिर पर्पस ही खत्म हो गया. AML. ओके, AML. आई होप यू कैन सी इट नाउ. या यू कैन सी इट नाउ. परफेक्ट, ठीक है. अच्छा, मुझे वहाँ क्यों जाना है? ए के कितने हैं, ऑटोमेशन के कितने हैं? एक सेकंड, क्वेश्चन भूल ही गया. क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ पेपर्स. हाँ, नंबर ऑफ पेपर्स. तो ऑटोमेशन का 3, ऑटोमेशन का 6, ऑटोमेशन 6. ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? पहले में 6 3 6. अरे छोड़, पूरा ही आई हैव टू सॉल्व. मैन्युफैक्चरिंग 2, मैन्युफैक्चरिंग 5, मैन्युफैक्चरिंग इज 5. एल भी देख लेते हैं. 1 3 4, 4 + 3 7. सही है ना? हाँ ठीक है. ऑप्शन देखते हैं. 657 है ये रहा. ऑप्शन नंबर 2 657. आई थिंक, एक सेकेंड, ऑथर्स रिस्पेक्टिवली AML 657. ठीक है, perfect. I've solved 2 sets. Now this is more than 2 sets actually, because I've solved how many questions? I solved 6 + 4 10 questions. I am more than happy about it. Now let me solve. Which set should I solve? Should I solve this? यार ये होगा नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. 3 मिनट बचे हैं. ठीक है, इसको ट्राई मारते हैं 3 मिनट में. यार वेरी अनलाइकली कि मैं टेबल बना के सब कर पाऊँ, बट ठीक है, इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ. What can you see on screen? Okay, you can see the mock. A, B, C, D, E, F, G are 7 people in a town. Any pair could be strangers, acquaintances. All relationships are mutual. For example, A is friend B. B is also friend A. Similarly, if Amuda is stranger to B, B is also, ठीक है. Partial information about number of friends, acquaintances, each other people are given. तो
पार्शियल इंफॉर्मेशन दी है ना, ठीक है। इस टेबल को रिक्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों, नो अदर ऑप्शन, A B C D तक है, E F G, what is their friends, acquaintance and strangers. Let me make the rows also because I'll have to do that. I don't think I have the time left to complete this set. एक सवाल भी करने के लिए मुझे अगर टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी लाइक द लास्ट सेट, ये होगा नहीं, बट डज नॉट मीन आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई हैव डन 10 क्वेश्चंस इन दिस एंड विच इज इक्वल टू 2.5 सेट्स विच आई, अब वो कितना सही है कितना नहीं है मेरे ख्याल से तो सब सही है, बट ठीक है, आई विल फिल दिस। तो अक्वेंटेंसेस क्या थे, 1 और 4, फिर अक्वेंटेंसेस चंद्रा का है 1, फिर दिनेश का 2 और एस का 1 2 1, वापस आ जाओ 1 3 2 1 3 2। एक तो ना मेरी स्पीड इंक्रीज हो सकती थी अगर मुझे लेफ्ट हैंड से स्क्रीन मैनूवर नहीं करने पड़ते, बट ठीक है, नो एक्सक्यूजेस, आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट, एनीवेज फॉरगेट दैट पार्ट। नाउ फॉलोइंग A B C आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, टेबल बनेगी कैसे? तो ए के जो 4 स्ट्रेंजर हैं, मतलब उसमें से एक बी है और एक सी है, हाँ ऐसी बनेगी, फिर और क्या बनेगा? इसमें से सेट कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। टाइम कितना बचा है? 1.5 मिनट है, कुछ होगा नहीं, बट ठीक है, ओके, बट आई एम हैप्पी विद इट यार, एज आई सेड लाइक 2.5 सेट्स, लेट्स सी व्हाट स्कोर्स विल इट गिव मी, एंड आई विल ऑल्सो चेक कि एक्चुअल कैट में क्या स्कोर होगा, मैं सॉरी क्या परसेंटाइल होगा। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फिर भी टेबल कितना सॉल्व हो जाए। म्यूचुअल फ्रेंड्स, सो बी और सी म्यूचुअल हैं, सॉरी म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, तो मतलब अगर ये बी सी हैं तो डेफिनेटली बी का 2 स्ट्रेंजर्स तो हैं ही विच इज़ ए एंड सी, एंड डेफिनेटली इसके भी 2 स्ट्रेंजर्स हैं विच इज़ ए एंड बी। ठीक है जी, नहीं मेरी बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी डाउन इसलिए हो गई है बिकॉज ऑन द स्क्रीन आई कैन सी 50 सेकेंड्स, 47 46 सेकेंड्स, तो मैं ज़्यादा ट्राई मारने नहीं वाला हूँ, आई विल जस्ट लाइक कीप इट, मैं ये इसको पार्शली छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। एंड ठीक है, थर्ड सेट पहुँचना अगर मैं पहुँच पाता, बट ठीक है, आई आई एम नॉट समबडी हुज ग्रेट विद दिस ऑल्सो, सो आई विल नॉट टेक इट वेरी पर्सनली टू माई हार्ट ऑल्सो, आई एम डूइंग इट टू सॉल्व अ लार्जर पर्पस of actually telling you that what it takes to solve it. So I will leave this here and we will see where it goes. 21 seconds on the clock. Let's see how far we'll go on this. I hope you've learned enough from this. The idea is that and it happened to be a very good set for me to show you, because one set I was able to solve without lifting a pen. तो जो मेरा objective था to show you कि यार कैसे without logic, score of 30, it's a very good score. Let me tell you what I know about myself. I hope you can see the screen. Yeah, from what I know about me, 30 is a very good score for me. 92 percentile, by the way, 92 percentile is the percentile of the people who attempted this as a mock on CL's website. So this is not the actual. अब मैं एक काम करता हूँ, now that we're talking about it, iPad को पहले तो side करता हूँ. Let me also check just for my fun and amusement कि 30 का score in actual 2021 slot 1 in DILR would have given me how much percentile. So for that I will have to first of all change my screen to the other screen, which is this one. Yes, now I will go to here and I will say CAT 2021 slot 1 DILR score versus percentile. This is what I'll do. तो दिख रहा है ना, आई होप सर्च मेरा ठीक है। तो 2IM का खोल लेता हूँ, एक इनका खोल लेता हूँ, जो भी टॉप आ रहे हैं वही खोल रहा हूँ। CL खोल लेता हूँ एक, ऑल दो मिल जाना चाहिए मुझे, यहीं पे कहीं पे आंसर्स मिल जाने चाहिए। ओके, 2021 slot 1 DILR 30, if you can see, this would have led to a 99
परसेंटाइल इज व्हाट दे सेड these people to IM they are saying. इसको थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ मैं जस्ट फॉर योर व्यूइंग. जूम इन करने का कोई फायदा नहीं हुआ, उससे वो टेक्स्ट हुआ. तो LRDI 30 वुड हैव बीन अ 99 परसेंटाइल. इनके साइट पे चेक कर लेता हूँ एक बार ये क्या कह रहे हैं. 2021 स्लॉट 1 28 वुड हैव बीन 99. हाँ तो ठीक है, बेसिकली 99% विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है, मतलब सरप्राइजिंग यूं है बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन LRDI. My strength is VARC that you would have seen if you would have seen my last year's video. And actually, I would encourage you to see my last year's video as well on DILR, on Quant, and on VRC. I'm happy with this, you know. I'll tell you, while I was attempting the mock, I was feeling scared. And I'll be honest in admitting I was feeling scared of getting exposed. Exposed बोले तो वही वाली बात है कि यार 2 सेट मतलब भी नहीं कर पाए. जब वो सेकंड सेट जो 6 क्वेश्चंस का सेट था, जब उसका फुल कर दिया था, व्हेन आई हैड मेड द फुल मतलब दिस थिंग, आई मीन मतलब द टेबल, आई वाज हैप्पी अबाउट इट. तब मुझे लगा था यार सही बात है, हो गया है काम, बहुत बढ़िया है. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि हो गया. अगर वो टेबल फिल नहीं होती या फिर अगर मैंने वो सही सेट नहीं चूज करा होता, ये 30 नंबर नहीं आते. एक चीज और है, मैं देख लेता हूँ फटाफट यहाँ पे. हाँ, बाय द वे, अभी मैं आऊंगा उस पर. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ लार्जर point home. If you've seen this video up till now, please go down in the comments and let me know what you're feeling about watching this mock. I would want to capture your real feelings. Please write it down. It'll give me encouragement, but that is not the main point. The main point is for you to capture your thoughts. What have you learned from it? वरना फायदा क्या है यार, 40 मिनट 50 मिनट बैठे मेरे साथ, देखा भी और कुछ कहा नहीं, समझा नहीं, बोले नहीं, लिख के जाओ. What do you feel about it? How do you feel about your performance now? And that what you will do. What I want to drive the point home is that, bhai, you need such guidance. If you think that you don't have anybody around you, your brother, sister, bhai, chacha, tau, who can guide you in your CAT prep, ab samay kam hai, reach out to me. I have a full-fledged mentorship program. In that, I will personally mentor you. You and I will be having video calls frequently, so that I can keep you on track. Apart from that, you get chat access to me, WhatsApp access, so you can chat with me and I will try to respond as early as I can. The idea is for somebody to keep you accountable. So like, for example, whenever we meet, and to all of the students which I have already, and they can actually like speak about that I give them homework. You have to take a mock test. I give them innovative homework so that इट्स नॉट अबाउट स्किल सेट. ये भी जो मैंने अभी करा, इट इज नॉट अबाउट कि मुझे DILR का स्किल अच्छे से आता है, मुझे क्वांट और मैथ अच्छे. दिस इज अबाउट परफॉर्मेंस. I am like a gym trainer who will train you for performance. That is what you will be taking my mentorship program for. Please don't leave no stone unturned. I have already showed you how simple it is. Go for it. Take the mentorship program. You will not regret it because your dreams are much bigger than any other hurdles. A lot of students, they don't take a program like this. I'll tell you why. They're like, अरे किसी के लिए accountable होना पड़ेगा. We'll have to be accountable to somebody. तो फिर तो you are scared. You know the answer. If you're feeling that fire right now, get the link in the description. Enroll for that mentorship program. See the, you should see the interviews of my previous year's students. They said every minute I've spent with you is worth it. I'm not trying to sell myself. Understand this. I'm trying to sell you the dream of you working hard and being accountable. That is important. A performance can be taken out with the same level of skill set. What I was wanting to show you actually was this. एक मैंने बीच में तुम्हें कहा भी था, let me change the screen and I'll show you what I want to show you, कि मैंने एक आध सवाल देख के करा था. सिर्फ देख के मतलब कि अंदाजे से कि यार ये लग रहा है, उसका चेक कर लेते हैं क्या हुआ था. और देखो, अगर मैंने if I've attempted questions is equal to 10, तो मतलब सारे ही हैं सही, तो मेरा कोई गलत नहीं हुआ है. सॉल्यूशंस में अगर मैं जाता हूँ, वो सेकंड सेट का सवाल था. देखो ये तो मैंने, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, ये तो मतलब मैंने कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करा था, तो कोई बात ही नहीं है. ये वाला गेम है भैया, ये मैंने अप्रोक्सीमेट करा था. मैंने कहा 1% जैसी तो ये वाली ग्रोथ जरूर हो सकती है, मगर 1 और 2 की ग्रोथ तो 1% से बहुत ज्यादा है, तो वह एग्रीगेट में कहीं 8% पहुंच जाएगा. इधर मुझे ऑप्शंस ने हेल्प करा था. तो ये बस एक चीज थी विच आई वांटेड टू शो यू. बाकी तो ये मतलब मैंने कैलकुलेट करा है. ये भी मैंने, इफ यू सी इफेक्टिवली मैंने करा है लाइक फ्रॉम अंदाजे. तो ऑल ऑफ इट इज करेक्ट.
Let me know in the comments what you're feeling. Do not forget to like the video, subscribe to the channel, because there is so much more which is going to come towards you. Not like any other educator who's just going to like talk about strategy and all. This is real deal. I'll see you in the next video. Thanks a lot. Goodbye.